Hello guys, this is Hari from English classes and today my topic is structure number 10. In this video I will tell you about the structure, how to use these, that, these and those along with possessive adjective. Okay, so this video will be very important for you all, so please watch till last without skipping it. And if you have just not subscribed my channel yet, please subscribe it and press the bell icon so that you will get more update videos. So let's start to read the structure number 10 that is very important for you all guys. Okay, so see guys, this is the structure number 10 which I'm just talking about here, right? So see, these, that, these and those. Okay, I have given here particular these, that, these and those. These all words are used. These all words are being used or are used as the place of subject. Then after we may apply that is supporting verb. Then we must go through possessive adjective, just like we can see my, our, your, his, her, their, right? Then after we must put at the last of a sentence that will be noun. Okay, so see guys, this का मतलब होता है यह, that का मतलब होता है वह, this means ये सारे और those means वे सारे. Means we may know that these, that ये दोनों जो वर्ड है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. बट ये जो आप देख रहे हो these और जो those देख रहे हो ये आपका क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है. यानी कि इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और इसके लिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जो यहाँ पे मेरा एक्सुलरी वर्ब है. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एक्सुलरी वर्ब दिया है वो मैं किस फॉर्म में दिया हूँ. ये मैं आपको दिया हूँ कॉमन, राइट. कॉमन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रकार का सपोर्टिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. I have not given here a particular supporting verb in this structure. Okay, that is why I have written here that is a dot will. It means this is a common supporting verb, means any supporting verb can be used in the sense of sentence. Okay, if the sentence shows in present form, we can apply is or are regarding the structure. Okay, regarding the sentences, regarding the subject. Okay, if the sentence is in the past form, we may apply was were. If the sentence is in the form of future, we may apply will, shall plus be. In this way we can apply different type of supporting verb in this structure. Okay, now we may see that is possessive adjective. What is possessive adjective? ये possessive adjective होता क्या है guys? तो possessive adjective होता क्या है कि possession क्या होता है. possession आपको दो चीज को शो करता है, एक रिलेशन शो करता है, ठीक है. जस्ट लाइक देखो ये क्या है, पोजीशन, राइट. ये आपका पोजीशन, ये आपका क्या शो कर रहा है, एक शो कर रहा है रिलेशन और एक शो कर रहा है आपका ऑनर, ठीक है. तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं. जस्ट लाइक क्या है आपका माई मतलब मेरा, आवर मतलब क्या होता है हमारा, योर मीन्स क्या होता है तुम्हारा, हिज मीन्स क्या होता है उसका, हर मीन्स क्या होता है उसकी, और दियर मतलब उन लोगों का. अगर मैं बात करूं यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, तो यह मतलब कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर थिंग है, मतलब वो सामान है, वह यह मेरा सामान है, यह मेरा कलम है, मतलब उस कलम का अधिकार किसका है, मेरा है. उस कलम से संबंधित किसका है, मेरा है. तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, जो आने रिलेशन और ऑनर शो कर रहा है, ठीक है. तो इसीलिए हम यहाँ पे माई का मतलब जानेंगे मेरा होता है, आवर का मतलब हमारा होता है, योर का मतलब तुम्हारा होता है, हिज मीन्स उसका होता है, हर मीन्स उसकी होती है, और दियर मीन्स उन लोगों का होता है. ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे. तो गाइस वी हैव सीन द स्ट्रक्चर दैट इज these, that, these and those. These all the words can be used as subject, then we must put supporting verb, then possessive adjective. At the last of a sentence we must apply that is noun. Okay, so see, these and that can be used for the singular subject, these and those can be used for the plural subject. Okay, so regarding that and according to subject we must apply that is supporting verb, right. Now we may see one more thing that, okay, अभी मैंने ये भी बताया कि प्रेजेंट रहेगा तो इज आर लगेगा, पास्ट रहेगा तो वाज वर लगेगा, फ्यूचर रहेगा तो विल शैल डॉट प्लस बी लगेगा. ठीक है, इस प्रकार से और सारे हम सपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ओके, सेंटेंस जैसा हो उसके अनुकूल हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में. ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं. आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, सो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू एनालाइज दैट हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, राइट. सो सी प्लीज, जस्ट लाइक यह मेरा घर है, ठीक है. तो यह मेरा घर है, तो यह का इंग्लिश क्या हुआ, दिस हुआ. ठीक है, अब दिस जो आपका क्या सिंगुलर सब्जेक्ट और मेरा क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, इट इज इन द व्हिच फॉर्म. ओके, तो जस्ट लाइक दिस सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, तो दैट इज व्हाई वी मस्ट अप्लाई इज डॉट
is slash r, right? Means is can be used for the singular subject just like this and that, and r is used for the subject just like this and those, means plural subject. Okay, तो यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस हो गया यह, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिव वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए है और ये आपका सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यूज इज बताया, दिस इज। अब देखिए यहाँ पे मेरा, तो मेरा का इंग्लिश क्या होता है, माई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा घर, मेरा घर, तो दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस। और एक और सेंटेंस में जैसे बताता हूं, एक सेंटेंस है, यह मेरा घर है, ठीक है, और एक सेंटेंस है, यह घर मेरा है। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, जस्ट पहले वो मैं देखता हूं। तो इसको बनाएंगे, दिस इज माई हाउस, राइट। अगर ये सेंटेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे यह घर, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, दिस हाउस इज, और यहाँ जो मेरा है इस प्लेस पे यहाँ पे होगा माइन, यानी कि यहाँ पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे जो है ये आपका जो है वो है आपका प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और इस जगह पे जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे जो माई देख रहे हैं वो आपका क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बस इतना ही खेल आपको समझना है। आप इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और सेंटेंस को कन्वर्ट सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ रहा हूं, वह तुम्हारा गाड़ी है, वह तुम्हारा गाड़ी है, ठीक है। तो वह तुम्हारा गाड़ी, तो वह इंग्लिश क्या हुआ, दैट आपका क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, इज। अब देखिए तुम्हारा इंग्लिश क्या होता है, योर होता है, दैट इज योर कार, ओके। वे, ये सारे मेरे मोबाइल हैं, तो ये सारे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दिस लगाएं। अब दिस के बाद मैंने क्या लगाना है, अब यहाँ पे देखिए है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में है, तो दिस आर, ठीक है। अब मेरे का इंग्लिश क्या होगा, माई, तो दिस आर माई। अब यहाँ पे क्या है, मोबाइल, तो मैंने क्या लगाया, मोबाइल, तो दीज आर माई मोबाइल अगर बोलते हो तो रॉन्ग होगा, दीज आर माई मोबाइल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, वो भी आपका प्लूरल फॉर्म पे है, क्योंकि वो शो कर रहा है दीज, ठीक है। अब देखिए क्या है, वे सारे तुम्हारे दोस्त हैं, वे सारे तुम्हारे दोस्त का मतलब क्या, दोज आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। वह उसका घर था, तो वह का इंग्लिश क्या हुआ, दैट वाज हिज हाउस। अब देखिए कि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट फॉर्म में है, तो जब ये पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज और वर यूज करेंगे। तो वह उसका घर था, वह का इंग्लिश दैट हुआ। अब था है तो वाज लगा, उसका का इंग्लिश हिज हुआ, और घर का इंग्लिश क्या हुआ, हाउस। दैट वाज हिज हाउस, वह उसका घर था। ये सारे उन लोगों की गाड़ियां थी, तो ये सारे का हो गया आपका दीस, ठीक है। अब दीस के बाद लगेगा वर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। उसके बाद क्या है, उन लोगों का, तो यहाँ पे क्या हुआ, दियर। अब यहाँ पे गाड़ियां हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्स। इसी प्रकार से जो मेरा लास्ट सेंटेंस है, वे सारे हमारे केले थे, तो दोस वर आवर बनानास। तो गाइस वी हैव सीन इन दिस स्ट्रक्चर दैट इज दिस, दैट, दिस एंड दोस प्लस सपोर्टिंग वर्ब प्लस possessive adjective plus noun, okay. So this structure is being used in different cases when we have to analyze the sentence. It shows in the form of relation and the honor, okay. So then we may apply this structure as I have just given you the explanations of this structure, guys, okay. So this structure has more sense, okay. अब वो कौन से सेंस में किस प्रकार का एक और स्ट्रक्चर है, उसको भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। जस्ट लाइक आपको समझना है एक चीज, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पे आप जैसे क्या सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद यहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे लगाइए पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप यूज कीजिए नाउन, ठीक है। अगर ये वाली स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं तो देखिए हम इस पे भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, कुछ सेंटेंस को आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है सेंटेंस को इंग्लिश में, ठीक है। जैसे क्या है कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ठीक है। अब इसको अगर यूज करना है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर तो लिख नहीं दिया कि दिस, दैट, दिस, दोज ही लगेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट यूज हो सकता है जैसा सेंटेंस हो। तो वह मेरा भाई, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग वर्ब है, तो है तो ही इज,
यहाँ पे होगा आपका माई, ही इज माई। अब देखिए आप ब्रदर है तो क्या है ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, राइट, ही इज माई ब्रदर। अब जैसे सेंटेंस है कि वह मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है, अगर ये वाली सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है तो वह का क्या होगा, सी होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फेमिनाइन जेंडर पत्नी का। तो सी इज माई स्पाउस, राइट, सी इज माई स्पाउस, वह मेरी पत्नी है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करूं कि वे सारे, ठीक है, या वे लोग हमारे दोस्त हैं। अगर ये वाली सेंटेंस को बनाना वे लोग हमारे दोस्त हैं तो सबसे पहले वे लोग है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हुआ, दे हो गया, ठीक है। अब दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, दे आर। अब हमारा देखना है कि हमारे का इंग्लिश क्या होता है, दे आर आवर। अब देखिए फ्रेंड हो यहाँ पे, दे आर आवर फ्रेंड्स। तो गाइस हम इस प्रकार से सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर दैट आई हैव रिटन हियर, सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिंग वर्ब प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस